A very good afternoon to one and all present here, and a warm welcome to the webinar organized by City Speaks. I'm Vallari Gupta, Consultant Land Governance at City Speaks. Today's webinar is basically a third discourse being held in the continuation of the series on the organization's Land Governance Initiative and Outreach Program. The project aims extensively probe the complex structure and status of land rights and land classification in the city of Visakhapatnam. As a think tank, City Speaks, which is engaged in research and policy advocacy, it has undertaken the project to understand the different dimensions of land disputes and encroachment issues that has affected life, livelihood, and property of the marginalized sections. So far, we have had insightful dialogues by eminent speakers like Mr. Narayan A., Professor Azim Premji University, Mr. Pranab Chaudhary, Vice President, NRMC Center for Land Governance, and Mr. Triveni Prasad and Ms. Aparna Soni for Rick's School of Built Environment, Amit University, on myriad of topics like land pooling and acquisition, institutional arrangements, and land policies in India as a part of City Speaks Land Governance Initiative. So to begin with, Maya Angelou once said, "Each time a woman stands up for herself, she stands up for all the women." The webinar today commemorates the International Day of the Girl Child, a reminder for us all to focus our attention on the need to promote girls' empowerment and the fulfillment of their human rights. The theme for the webinar today, Inheritance of Land by Girls, throws light on land rights of the women, specifically girls, which form some of the key indicators of Sustainable Development Goals, wherein the Target 5A addresses the rights of women to economic resources and access to ownership of land. Secure land rights of women in India have demonstrated enhanced agriculture productivity and built resilience among the small and marginal farmers, who constitute as much as 75% of the farming community. The Constitution of India does provide equal rights to both men and women. However, women's access to land is largely through inheritance, and inheritance in India is governed by customs that vary across states to state. Over the last 5 years, both central and state governments have made many progressive reforms to realize the goal of secure and equitable land tenure for all. Our honorable speaker today, Ms. Shipra De Ma'am, Director of Women's Land Rights Landesa, is passionate about working to strengthen women's land rights in India. She is a development practitioner with more than 20 years of experience in managing multidisciplinary programs, addressing women's empowerment, women's land rights, livelihood, amongst various others. We would love to delve into ma'am's achievement, many other to follow. However, speaking of them briefly would be an understatement of her expertise, and so we leave that for the audience to read that in the chat session. A very warm welcome, ma'am. We are honored to host an expertise like yours today. Before handing over the platform to ma'am, I would like to quote some of her work. Based on her on-ground experiences, she understands the power of owning a piece of land, especially for women and girls. भूमि अधिकार न केवल गरिमा और दावे के जीवन के लिए दरवाजे खोलता है, बल्कि औरत को अधिकारों को उपयोग करने और परिवार और समाज को लाभ प्रदान करने में सक्षम भी बनाता है। भूमि अधिकार उसे अपने जीवन में विभिन्न प्रकार के हिंसा का सामना करने की ताकत भी देता है। And now, as I hand over the screen to ma'am, I would now request. I think Valerie's network has some issue. Ma'am, we would like you to take over the session and please deliver some of the wise words so that we could have some insightful session for the next half an hour and learn from you. Yeah, sure. And thank you, Valari, and thank you, Srilekha. I see we are a small group, and since I knew that we are joined mostly by students, I think we'll do it more in a conversation mode rather than in a lecture delivery sort of thing. And knowing that we will be joined by more of the students, I had prepared some slides. I thought that those slides will help students focus on where we are and what we are discussing. I know students generally tend to lose track of what's being discussed. So I thought that those slides will help. So Srilekha, can you allow me so that I can share the slides, or?
So, yeah. So, good afternoon, everyone, once again, and thank you for helping me out with all this. So, since Valari, you said you have organized this, especially in the context of International Day of Girl Child. I will talk a little about girls, a little about land, and also something about their rights to inherit. और I will start with a girl called Anju. Or I met this girl 10 years back in a village in Agra. वो एक 16 साल की लड़की थी जिससे मैं मिली. उस लड़की को जब मैं मिली, वो 6 बहनों में सबसे बड़ी बहन थी. उसके पापा डिफेंस में थे और उसके पापा की डेथ हो चुकी थी. और जब मैं उससे मिली उस समय उस लड़की ने अपने क्लास 10th के एग्जाम दिए थे and she had passed with the first division. It was a rural area. And when I got a chance to have a conversation with her, she told me that there are 6 sisters. She was the eldest one. और उसकी माँ को अपने जेठ के बेटे को अडॉप्ट करना पड़ा और विल करना पड़ा कि उनकी जो भी जमीन है वो उनके बेटे को जाएगी, जिस बेटे को उन्होंने अडॉप्ट किया. जबकि हमारे देश में हिंदू सक्सेशन एक्ट के तहत लड़कियों को जमीन पर अधिकार तभी भी था और अभी भी है. तो ये सवाल एक बहुत उलझा हुआ है कि इस तरह ऐसा क्या हुआ कि उस लड़की की माँ को अपने जेठ के बेटे को अडॉप्ट करना पड़ा और वो अपनी 6 बेटियों में से किसी को भी जमीन नहीं दे सकी. ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसके दिमाग में और परिवार का इतना दबाव था कि जब उसने बहुत, उस लड़की ने, अंजू ने बहुत असर्ट भी किया, अपनी माँ को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी उसकी माँ को हमेशा यही लगता रहा कि अगर उन लोगों को जमीन हमने नहीं दी और मेरी लड़कियां कैसे जमीन लेंगी, और अगर मैंने मेरे जेठ के बच्चों को नहीं अडॉप्ट किया तो मेरी लड़कियों का कोई भाई नहीं होगा, और कोई भाई नहीं होगा तो इन लड़कियों की शादी कैसे होगी. तो इस तरह से उलझे हुए सवालों से जूझती हुई अंजू की कहानी है. वो लड़की को मैंने इस तरह की कहानी पहली बार देखी थी, पर धीरे धीरे जब मैंने लैंड राइट्स के ऊपर ज्यादा काम करना शुरू किया, मुझे इस तरह की बहुत सारी कहानियां दिखाई पड़ी गाँव में. Yeah, so I was telling you about this Anju, and then yesterday, 11th of October, happened to be the International Day of Girl Child. It was actually the 10th Day of Girl Child, and this year's theme for this Day of Girl Child is My Voice, Our Equal Future. The question that comes to my mind at the beginning is, why girls need to raise their voice about their equal future? ऐसी जरूरत क्यों है कि लड़कियों को आवाज उठानी पड़े अपने बराबर भविष्य के लिए? मैं एक छोटा सा डेटा इस्तेमाल करूंगी जिससे आपको पता चलेगा कि ये इनइक्वालिटी है क्या. वो छोटा सा डेटा है सेक्स रेशियो का. सेक्स रेशियो का मतलब होता है, चाइल्ड सेक्स रेशियो का मतलब होता है किसी भी समय पर 0 से 6 साल के बच्चों में कितने लड़के हैं और कितने लड़कियां हैं. अगर आप ये डेटा को देखेंगे, हिंदुस्तान का सेंसस का डेटा 1981 से अवेलेबल है, फ्रॉम 1981 to 2011. कंसिस्टेंटली इन एवरी डिकेडल सेंसस का डेटा 10 साल में एक बार इकट्ठा होता है. हम देखते हैं कि ये जो सेक्स रेशियो है, इट्स कॉन्टिन्यूअसली डिक्रीजिंग. जहाँ पर 81 में इट वाज अराउंड 947, बट इन 2011 सेंसस इट वाज
990। मैं आपको एक घटना बताऊंगी सन 2000 की, 2001 की। उस समय मैंने नया नया डेवलपमेंट सेक्टर में काम करना शुरू किया था। मैं उत्तराखंड की रहने वाली थी और मैं राजस्थान के इलाकों में काम करने गई थी। तो राजस्थान में मैं ग्रामीण क्षेत्र में एक प्रशिक्षण कर रही थी लोगों का, और वो प्रशिक्षण ऐसा था कि गांव के बहुत सारे लोग इकट्ठे थे। उसमें करीब 40 लोग थे, जिसमें 8-8 लोगों के छोटे छोटे ग्रुप बनाए थे। तो हर ग्रुप जो था एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के ऊपर एक माइम प्रेजेंट कर रहा था, और उस माइम को प्रेजेंट करने के बाद जो बाकी पार्टिसिपेंट्स थे उनको डिकोड करना था कि इसमें क्या है। तो एक ग्रुप था जिसके पास विषय था राइट टू लाइफ। उस ग्रुप ने अपना माइम प्रिपेयर करा और प्रेजेंट करा। जब ग्रुप के लोग उसको डिकोड कर रहे थे तो मैं सुन रही थी और समझ भी रही थी। और मुझे ये लगा कि जो पूरे माइम में उन लोगों ने दिखाया, उन्होंने दिखाया कि एक लड़की की शादी हुई, फिर वो उसके बाद प्रेग्नेंट हुई, फिर वो हॉस्पिटल गई, और हॉस्पिटल में उसको घर के लोग लेके गए। हॉस्पिटल में डॉक्टर आए, उन्होंने उसकी डिलीवरी कराई। यहाँ तक तो उन्होंने माइम में जो कुछ प्रेजेंट किया, वहां तक मुझे समझ में आया कि क्या है। लेकिन उसके बाद उन्होंने जो किया वो मुझे समझ में नहीं आया कि ये लोग माइम में क्या प्रेजेंट कर रहे हैं। बट आई वॉज सो सरप्राइज्ड एंड सो शॉक्ड when I realized कि except me, everyone in the room, I mean all the participants of the village, they could decode what was it. And it was कि जो बच्चा पैदा हुआ था वो एक लड़की थी, और जब वो पैदा हुई तो उसको गांव के जो घर के लोग थे वो उसको लेके जंगल में जाके छोड़ आए। इट वॉज सच अ शॉकिंग एंड सरप्राइजिंग इंसिडेंट फॉर मी कि ये चीज इतनी कॉमन है इस इलाके में कि हर एक को मालूम है कि क्या हो रहा है, लेकिन मैं नहीं समझ पाई कि ये क्या हो रहा है। और ये वो इलाका था राजस्थान में जहां पर चाइल्ड सेक्स रेशियो 500 से 600 के बीच में रहा है इतने दिनों में। तो ये वो चीजें हैं जो कि हमारे समाज को, ये सब चीजों को डिटरमिन करती हैं, लड़कियों की डिस्पैरिटी को, उस अनइक्वल लाइफ को जो लड़कियां जीती हैं। अभी एक रिपोर्ट आई है यूएनएफपीए की, वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2020 की, जिसमें उन्होंने बताया है कि ग्लोबली जो मिसिंग गर्ल्स हैं उसमें से हर 3 लड़कियों में से एक लड़की इंडिया की है। अमर्त्य सेन का नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा। अमर्त्य सेन ने सन 2000 के आसपास ही, उन्हीं दिनों जब मैंने काम ज्वाइन किया था या उससे कुछ साल पहले, लेट 90s में एक रिसर्च करी थी दिल्ली के बड़े बड़े हॉस्पिटल में। एंड दिस रिसर्च इज मेंशन्ड इन हिज बुक आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियन। और उस रिसर्च में उन्होंने देखा कि दिल्ली में जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में, लेडी हार्डिंग उनमें से एक है, मुझे याद है जब मैंने पढ़ा था, तो उसमें जब लोग उन बच्चों को लेकर, जब बच्चे जो बीमार होते हैं जब उनको लाया जाता है उस हॉस्पिटल में, तो उन्होंने देखा कि लड़कियों को किस स्थिति में लाया जाता है और लड़कों को किस स्थिति में लाया जाता है। तो उन्होंने ये पाया कि जब लड़कियां हॉस्पिटल में लाई जाती हैं तो वो बहुत ज्यादा बीमार होती हैं बजाय उस स्टेज के कि जब लड़के लाए जाते हैं। मतलब कहने का ये कि लड़के तो थोड़े से भी बीमार हो तो परिवार के लोग चिंता करते हैं कि भाई इनको हॉस्पिटल ले जाएं और इनका इलाज हो, लेकिन लड़कियां, राजस्थान में तो मैंने बहुत आम तौर पे सुना, रहे लड़की है ये तो रो रो के बड़ी हो जाएगी, ये लड़की है ये मरेगी नहीं, ये तो ऐसे ही चलती रहेगी। तो इस तरह की बहुत सारी घटनाएं हैं जो कि बताती हैं कि लड़कियां किस तरीके से अनवांटेड हैं, किस तरीके से नेग्लेक्टेड हैं, और किस तरीके से उनको इरेज करने की एक पूरी प्रक्रिया समाज में है। और जो लोग ये करना चाहते होते हैं उनको सब पता होता है कि कहाँ जाना है और कैसे करना है। इन्हीं दिनों मार्च में एक रिपोर्ट यूएनडीपी की आई है, और उस रिपोर्ट में उन्होंने
ये बात करी, उन्होंने एक ग्लोबल सोशल नॉर्म्स इंडेक्स डेवलप करा है, जिसमें उन्होंने देखा है कि दुनिया भर में जो लोग हैं उनका माइंडसेट जेंडर नॉर्म्स के बारे में कैसा है। और उन्होंने अपनी स्टडी में फाइंड आउट किया है कि हर 10 में से 9 लोग, यानी कि करीब करीब 90% लोग, दे हैव सम सॉर्ट ऑफ बायस अगेंस्ट वुमेन। उन्होंने कुछ नॉर्म्स लिए थे स्पेसिफिक, जिसके बारे में उन्होंने लोगों से एग्री डिसएग्री इस तरह के सवाल पूछे थे कि लड़कियां कमजोर होती हैं, या लड़कियां मैथ्स की पढ़ाई नहीं कर सकती, या लड़कियां टेक्निकल एजुकेशन में नहीं जा सकती। और मैंने जब ग्रामीण इलाकों में काम किया है तो मैंने देखा है कि बहुत जगहों पर लड़कियों के नाम बहुत स्ट्रेंज रखे जाते हैं। जैसे कि राजस्थान में मैंने देखा बहुत सारी लड़कियों का नाम होता था आचुकी। वेस्ट बंगाल में मैं गई तो मैंने देखा बहुत सारी लड़कियों का नाम होता है इति। उत्तर प्रदेश में गई तो मैंने देखा बहुत सारी लड़कियों का नाम था अंतिमा। ये सब नाम इसलिए रखे जाते हैं कि एक गांव में ये सोच है लोगों की कि ये नाम रख देंगे तो एक जैसे टोटका होता है कि अब इसके बाद हमारे घर में लड़की नहीं आएगी, आ चुकी, बहुत हो गई, इति खत्म हो गई, अंतिमा माने अब ये आखिर है। तो इस तरह से जब लड़कियां इस तरह के परिप्रेक्ष्य में जन्म लेती हैं, इस तरह के कॉन्टेक्स्ट में जन्म लेती हैं, तो वो पूरे के पूरी उनकी जिंदगी जो है नेग्लेक्ट के बीच ही बड़ी होती है। पूरी की पूरी जिंदगी नेग्लेक्ट में ही बीतती है। दे आर डिप्राइव्ड ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू स्टडी। आजकल बहुत सारे गवर्नमेंट की स्कीम्स की वजह से प्राइमरी स्कूल में एनरोलमेंट तो बहुत ज्यादा होने लग गया, बहुत जगहों पर यूनिवर्सिटीज में भी एनरोलमेंट है, लेकिन फिर भी टेक्निकल यूनिवर्सिटीज में, टेक्निकल डिग्रीज में, और उसके बाद लड़कियों और औरतों के वर्क फोर्स में एंट्री होने में बहुत ज्यादा बड़ा गैप है, बहुत ज्यादा बड़ा गैप है। और इसी तरह अगर हम प्रॉपर्टी राइट्स की बात करते हैं तो बहुत पुख्ता तो हमारे पास डेटा ही अवेलेबल नहीं है, हमारे कंट्री में डेटा सिस्टम उतना स्ट्रांग नहीं है, लेकिन जो जनरल स्टडीज हैं, जो कि माइक्रो स्टडीज हैं, यहाँ वहाँ करी गई हैं, उनसे ये पता चलता है कि ये 7 से 13% के बीच में वेरी करता है लड़कियों या औरतों के नाम पे जमीन का होना। तो ये जो सारे सोशल बायसेस हैं, ये जो सब जो हमारे आचार विचार, हमारा वैल्यू सिस्टम है, ये डिटर्मिन करता है कि लड़कियों के बारे में कानून कैसे हैं, ओवरऑल सोच कैसी है। जब खास करके प्रॉपर्टी राइट्स की बात करते हैं तो जिस तरह से सोशल नॉर्म और वैल्यू सिस्टम लड़कियों की हेल्थ, एजुकेशन, ये सब चीजों को इम्पैक्ट करता है, उसी तरीके से ये उनके प्रॉपर्टी राइट्स को भी इम्पैक्ट करता है। सबसे पहले तो हमारे अंदर ये वैल्यू सिस्टम इम्बाइब्ड होता है कि लड़कियां जो है किसी दूसरी फैमिली को बिलोंग करती हैं, या फिर ये कि लड़कियों का प्लेस तो उनके मैरिटल हाउस में ही है, या फिर ये कि लड़कियों को तो हम दहेज दे देते हैं तो उनको प्रॉपर्टी में क्यों हिस्सा देना। और ओवरऑल जब हम लड़कियां यही सब सुनते हुए बड़ी होती है तो उनका असर्शन भी बहुत वीक होता है। वो इस बात को इंटरनलाइज करके बड़ी होती है कि ये घर तो मेरा नहीं है और मुझे किसी दूसरे घर में जाना है। तो ये जो सारी चीजें होती है, ये ओवरऑल जो पेट्रियार्कल सिस्टम है, ये हमारे प्रॉपर्टी राइट्स को भी इम्पैक्ट करता है। ऐसे इम्पैक्ट करता है कि जो लोग कानून को बनाते हैं, पॉलिसी मेकर्स, या जो लोग उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, दे ऑल होल्ड दीज पेट्रियार्कल बिलीव्स। तो क्या होता है कि लड़कियों को जमीन का मालिक ही समझा नहीं जाता है। एक बार मैं एक रेवेन्यू ऑफिशियल के साथ बात कर रही थी और हम लोग बात कर रहे थे कि किस तरीके से जमीनें औरतों के नाम पे भी रजिस्टर होनी चाहिए। तो उसका कमेंट था कि लड़कियां क्या करेंगी जमीन का, आखिर तो उनको मतलब अपने या तो पति के घर में रहना है या तो फिर अपने फादर के घर में रहना है, तो किसी ना किसी पुरुष के ही साथ रहना है, तो उनको उनके नाम पर जमीन होने से क्या फायदा।
जो एक लॉ कमीशन की इंडिया का जो लॉ कमीशन है 174th लॉ कमीशन की जो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट में लॉ कमीशन ने इस बात को एडमिट किया है that since time immemorial the framing of all property laws have been exclusively for the benefit of man and women has always been treated as subservient, dependent on male support. लिहाजा सारे के सारे जो लॉज हैं वो इसी तरीके से बने। अब अगर हम इनहेरिटेंस की लॉज पर आते हैं, तो अगर हिंदुस्तान में हम इनहेरिटेंस की लॉज को देखते हैं तो एक गैमट है लॉज का, वेब है, बिल्कुल एक मकड़ी के जाल की तरह, जो इतनी सारी लॉज हैं जो कि इनहेरिटेंस के चीजों को गवर्न करती हैं। लेकिन इन सारी इनहेरिटेंस लॉज को जब हम देखते हैं तो एक चीज कॉमन है, और वो कॉमन चीज ये है कि लड़कों को तो सभी लॉज में अधिकार है। कोई लड़का है तो उसको तो अपने फादर की प्रॉपर्टी या मदर की प्रॉपर्टी को इनहेरिट करने का राइट है, लेकिन लड़कियों के लिए ये राइट वेरी करता है। वेरी कैसे करता है? वेरी ऐसे करता है कि पहले तो रिलीजन के हिसाब से वेरी करता है, क्योंकि इनहेरिटेंस जो है हमारे देश में रिलीजियस लॉ से गवर्न होता है। तो वो हिंदू है या वो मुस्लिम है या वो क्रिश्चियन है या वो बौद्ध है, इन सब चीजों के आधार पर इनहेरिटेंस गवर्न होता है। और दूसरी बात जिससे ये गवर्न होता है वो है कि वो अनमैरिड है या वो मैरिड है या वो डिवोर्स्ड हो गई या फिर वो विडो हो गई या फिर वो मदर है। तो ये जो इतनी सारी चीजें हैं इनके ऊपर डिपेंड करता है, और उसके मैरिटल स्टेटस के साथ साथ उसका इनहेरिटेंस का एंटाइटलमेंट, लॉफुल एंटाइटलमेंट जो है वो बदलता जाता है। जबकि लड़के के लिए इन सब बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि वो जनरली हर रिलीजन में भी, अनलेस कि वो कोई बहुत ही मेट्रिलिनियल सोसाइटीज हैं जो कि बहुत ही रेयर हैं, कहीं कहीं ट्राइबल इलाकों में है, बहुत ही रेयर हैं, लेकिन अदरवाइज इट्स लाइक यूनिवर्सल कि लड़कों को तो लैंड राइट मिलेगा ही, लेकिन लड़कियों को नहीं मिलता, और इन सारी चीजों के ऊपर वो डिपेंड करता है। अब लैंड की ओनरशिप, जब लड़कियों को इनहेरिटेंस की लॉज को हम देखते हैं जो अलग अलग रिलीजियंस की अलग अलग हैं, तो उसमें 80%, क्योंकि हिंदू पॉपुलेशन ज्यादा है तो हिंदू सक्सेशन एक्ट से गवर्न होती है। तो मैं थोड़ा ज्यादा हिंदू सक्सेशन एक्ट के बारे में बात करूंगी और थोड़ी सी शरिया लॉ के बारे में भी बात करूंगी। दोनों में ही भेदभाव है लेकिन दोनों में थोड़ा फर्क है। शरिया लॉ में क्या है? शरिया लॉ में ये है कि एक लड़की को राइट मिला है फादर की प्रॉपर्टी में, लेकिन उसको 1/3 राइट मिला है, नंबर 1 बात। और नंबर 2 बात कि वहां पे जो फादर है वो अपनी प्रॉपर्टी को विल ऑफ करना या वसीयत करना, उसमें भी पूरी की पूरी प्रॉपर्टी को नहीं विल कर सकता, वो खाली 1/3 को ही विल कर सकता है। दैट्स द सेकंड थिंग। पर जो हिंदू लॉ है, इसको अगर हम एक कहानी की तरह समझे तो मैं आपको ये बता सकती हूँ कि इंडिपेंडेंस के पहले या जब कॉलोनियल टाइम्स थे, जब ब्रिटिशर्स का राज था, उस समय पहली बार लिखी हुई कानून आने की प्रक्रिया शुरू हुई जब लॉज को कोडिफाई करना शुरू किया गया। तो सबसे पहला जो ड्राफ्ट हिंदू लॉ के लिए बना वो 1928 में बना, उसके बाद एक सेकेंड ड्राफ्ट 36 में आया। लेकिन जब इंडिपेंडेंस के बाद जो पहला सक्सेशन एक्ट फुल फ्लेजेड आया, दैट केम इन 1956, जो आज भी हमारे देश में चलता है। इस कानून में फॉर द फर्स्ट टाइम डॉटर्स को राइट दिया गया। इस मायने में ये कानून बहुत ही एडवांस्ड समझा गया, पर इसके पहले कभी भी लड़कियों को किसी भी तरह का जमीन पे अधिकार इनहेरिट करने का नहीं था। लेकिन अब इस कानून में जब इनहेरिटेंस का राइट दिया गया, उस समय जब कॉन्स्टिट्यूशन, जब ये लॉ बन रहा था और उस समय जब पार्लियामेंट के इसके ऊपर डिस्कशंस और डिबेट्स चल रहे थे, तो इसके ऊपर बहुत कॉन्फ्लिक्ट हुआ
क्योंकि ज्यादातर लोग नहीं चाहते थे कि लड़कियों को और औरतों को किसी भी तरह का राइट मिले। तो क्या किया गया, इसका रास्ता निकाला गया। रास्ता ऐसे निकाला गया कि 90 जो बेसिक हिंदू सक्सेशन एक्ट है 1956 का, उसमें कुछ एक खास बातें हैं जो कि उन लोगों को समझने में अच्छी रहेंगी जो कि तकनीकी बात को समझना चाहते हैं। उसमें 4 बातें खास ये हैं कि सबसे पहली बात कि ये जो हिंदू सक्सेशन एक्ट है वो एग्रीकल्चर लॉ पे नहीं, एग्रीकल्चरल लैंड पे नहीं लगेगा, ये खाली रिहायशी जमीनें जैसे हम घरों में रहते हैं उन पर लगेगा। ये पहली बात थी उस एक्ट के अंदर। दूसरी बात क्या करी, दूसरी बात मैंने आपको बताई कि पहली बार इन्होंने डॉटर और विडो को राइट दिया। अब लेकिन ये किन डॉटर और किन विडो को और किन प्रॉपर्टी, किस प्रॉपर्टी में राइट दिया गया, ये भी समझने वाली बात है। इस एक्ट ने क्या किया, 1956 एक्ट ने जो प्रॉपर्टी है उसको दो अलग अलग तरह की प्रॉपर्टी में बांट दिया। वो 2 अलग अलग तरह की प्रॉपर्टी है कि एक है जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी, जो कि किसी परिवार में 3 जनरेशन से है। मेरे दादाजी से मेरे पापा को मिली, मेरे पापा से उनके बेटे को मिली। दैट इज कॉल्ड जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी, उसको कोपार्सिनरी भी कहते हैं और उसको कहीं कहीं पर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी कहते हैं। इनमें कुछ तकनीकी अंतर है पर अभी मैं उसमें नहीं जाऊंगी। और दूसरी तरह की प्रॉपर्टी वो रखी गई जो कि थी किसी व्यक्ति के द्वारा खुद कमाई गई इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी। तो ये 2 अलग अलग तरह की प्रॉपर्टी दी गई और उसमें किया ये गया कि एक इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी किसी आदमी ने जो अर्न करी है उसमें तो डॉटर को इक्वल राइट दिया गया, लेकिन तो जॉइंट फैमिली की प्रॉपर्टी है उसमें नहीं दिया गया। उसमें लड़कियों को वो जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का हिस्सा नहीं समझा गया और उस माने कोपार्सिनरी का हिस्सा नहीं समझा गया, जिनके की बीच में संपत्ति का बंटवारा हो सकता है, लेकिन इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी का राइट दिया गया। पर चालाकी ये की गई कि लड़कियों को इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी में राइट तो दिया गया, लेकिन जो प्रॉपर्टी का ओनर है फादर, उसको विल करने का राइट दिया गया। 1956 से पहले कोई एक्ट, कोई कानून, कोई प्रचलन ऐसा नहीं था हिंदुओं के कानून में जो कि प्रॉपर्टी को विल कर सके। प्रॉपर्टी अनडिवाइडेड फैमिली के बीच में ही उस समय के कानूनों के हिसाब से एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाती थी, लेकिन ये विल ऑफ करने का राइट दिया गया। और ज्यादातर ये जो विल करने का राइट है ये हमेशा ज्यादातर देखा गया है कि लड़कियों के को प्रॉपर्टी से डिप्राइव करने के लिए ही इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो थी ये मेजर 4 चीजें उस हिंदू सक्सेशन एक्ट में थी जो 1956 से था। इसमें से केवल एक चीज अब बदली है जो कि शायद आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा भी होगा। अभी अगस्त के महीने में एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था कि डॉटर्स आर बोर्न डॉटर्स एंड दे हैव फुल फ्लेजेड राइट ओवर, जब से वो पैदा हुई हैं तब से उनको संपत्ति में बराबर का अधिकार है। तो जब से सन 1956 में ये कानून बना था कि जॉइंट फैमिली की प्रॉपर्टी से लड़कियों को अलग रखा जाएगा, तभी से जो वुमेन्स मूवमेंट है उसकी ये लड़ाई थी, ये स्ट्रगल जारी थी कि लड़कियों को कोपार्सिनरी का या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का जॉइंट फैमिली में हिस्सेदार समझा जाना चाहिए। आप लोग समझिए कि ये लड़ाई कितनी मुश्किल है कि इसको पार करने में पूरे 50 साल लगे और 50 साल बाद सन 2005 में ये कानून आया जब हिंदू सक्सेशन एक्ट में ये अमेंडमेंट हुआ और उसमें ये कहा गया कि अब जो डॉटर है चाहे वो मैरिड है या वो अनमैरिड है वो भी जॉइंट फैमिली का हिस्सा होगी और जॉइंट फैमिली का डिवीजन होगा तो उसको डॉटर को बराबर राइट मिलेगा। अब लेकिन कानूनी दांव पेच
और जो मैं कह रही थी माइंडसेट की बात, जो मैंने शुरू में की थी, कि जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो लॉयर्स हैं, जो जजेस बैठे हैं, उन सबके दिमाग में भी पेट्रियार्कल बिलीफ्स इतने गहरे हैं कि उनसे लड़कियों और औरतों को हर जगह जूझना पड़ता है। तो ये जब 2005 में ये अमेंडमेंट हुआ भी, तो क्या हुआ कि जब कुछ कुछ केसेस कोर्ट में आए, तो जो कोर्ट्स के जजमेंट आए उनके परिणाम में, तो जजेस ने और लॉयर्स ने ये कहना शुरू किया कि 2005 में जिस लड़की की शादी हो गई उसको नहीं मिलेगा, जो लड़की 2005 के पहले पैदा हो गई उसको नहीं मिलेगा, या 2005 में किसी का फादर अलाइव नहीं है तो उसको नहीं मिलेगा। इस तरह से मैंने बहुत सारे इसको कॉम्प्लिकेशंस में उलझा दिया। तो इसी के ऊपर जो है डिस्कशंस चलते रहे, और आप देखो इस छोटे से कंफ्यूजन को, जो कि एट द फर्स्ट प्लेस मेरे हिसाब से होना ही नहीं चाहिए था, उसको क्लियर करने में 15 साल और लग गए। तो 2005 का आया हुआ एक्ट 2020 में ये क्लैरिटी हो पाई, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अ डॉटर इज इक्वल बाय बर्थ, जो अभी रिसेंट जजमेंट कोर्ट का आया था। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो जो डॉटर का राइट है, वो मैरिड या अनमैरिड होने से फर्क नहीं पड़ता, डॉटर चाहे मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो, वो उस परिवार का हिस्सा है। और जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का हिस्सा डिक्लेयर होने से ये भी फायदा हुआ कि अब लड़कियां जो हैं अनडिवाइडेड फैमिली, जो फैमिली की जॉइंट प्रॉपर्टी है, उसके डिवीजन की भी मांग कर सकती हैं। और जो एक परिवार में जो एक कर्ता की भूमिका होती है, जिसको लीगल भाषा में कर्ता कहा जाता है, बट अदरवाइज इसको सरल भाषा में हम परिवार की देख रेख करने वाला बड़ा जिसको कहते हैं, वो भी समझ सकते हैं, जो कि परिवार के लिए डिसीजन मेकर होता है हमारी परंपराओं में। लेकिन पहले वो भूमिका लड़कियां नहीं कर सकती थी, पर अब लड़कियां वो भूमिका निभा सकती हैं। ये उसका ये इम्प्लीकेशन है जो 2005 में चेंज हुआ। अब मुझे ये लगता है कि ये जो 2020 में जब जो कोर्ट ने प्रोनाउंस किया है इतनी पुरजोर शब्दों में सबको कि डॉटर्स आर बॉर्न डॉटर्स एंड इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर मैरिटल स्टेटस दे आर इक्वल, तो ये एक अपॉर्चुनिटी है लड़कियों के लिए अपने राइट्स को असर्ट करने की। अपॉर्चुनिटी ऐसे है कि जो सबसे ज्यादा आमतौर पे आर्ग्यूमेंट देते हैं लड़कियों को प्रॉपर्टी राइट से डिप्राइव करने के लिए, वो होता है कि हम लड़कियों को दहेज दिया जाता है। पर अगर सही मायने में देखें तो दहेज जो है, सबसे पहले तो वो इलीगल है। दहेज को डाउरी इलीगल है, ये कानून हमारे देश में कब से है? सबसे पहली बात तो वो इलीगल है, जबकि प्रॉपर्टी राइट इज लीगल, हमें लॉफुल राइट है। नंबर 2, जो हमें दहेज मिलता है वो लड़कियां कभी भी इस्तेमाल नहीं कर पाती, वो लड़कियों को कभी भी हक की तरह नहीं मिलता। वो पेरेंट्स भी ऐसे ही देते हैं, एक तो सामाजिक रसूख उसमें दिखाई पड़ता है कि समाज में स्टेटस क्या है उसके लिए देते हैं, और तो या तो उसके पेरेंट्स के परिवार का स्टेटस होता है या ससुराल के परिवार का स्टेटस होता है, और ज्यादातर जो वो पैसा होता है या तो शादी के सेलिब्रेशन में या फिर छोटी छोटी कुछ चीजें लेने में चला जाता है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई हैव सीन कि उसके ऊपर लड़की का राइट नहीं रहता है, अगर उस पैसे को कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे नहीं इस्तेमाल करना है, इस बारे में उसका कोई भी डिसीजन और उसके ऊपर उसका कोई कंट्रोल नहीं होता। तो मेरे हिसाब से ये जो 2005 में अभी जो 2005 के एक्ट का जो एक्सप्लेनेशन 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, वो लड़कियों के लिए अपॉर्चुनिटी के एक बहुत सारे दरवाजे खोलता है। और इन
दरवाजों का लड़कियों को अपनी अपनी सिचुएशन के हिसाब से इस्तेमाल करना चाहिए कि वो उस अपॉर्चुनिटी को कैसे फायदा उठा सकती हैं। और लड़कियों के लिए वल्लारी ने एकदम शुरू में बताया था कि लड़कियों को या औरतों को जमीन क्यों मिलनी चाहिए, क्यों होना चाहिए, पर मुझे लगता है कि सबसे पहले तो इसीलिए होनी चाहिए कि इसकी वजह से लड़कियों के अंदर सुरक्षा का एहसास बहुत गहरा होता है। क्योंकि आज के समय में लैंड एक बहुत ही पावरफुल एसेट है, इसीलिए ये इतना कंटेस्टेड भी है, इसीलिए इसके अराउंड जो कानून है वो इतने गहरे भी हैं। पर लैंड की ओनरशिप हमारी एक अपनी आइडेंटिटी से, पहचान से जुड़ी होती है, और किसी भी मुश्किल वक्त में काम आने वाला सबसे महत्वपूर्ण और पावरफुल जो एसेट है वो लैंड होता है। अगर कोई भी कमजोर स्थिति है तो अगर किसी के पास जमीन होती है, वो कहता है अरे हमारे पास तो जमीन है, हम इसमें उगा के खा लेंगे। एक छोटा सा कमरा है, वो कहता है कि मैं तो इसी में रह के अपना गुजारा चला लूंगा। और ये जो मजबूती होती है वो लड़कियों को असर्ट करने की ताकत भी देती है। असर्ट खाली जमीन नहीं, असर्ट किसी भी क्षेत्र में। वायलेंस ले सकते हैं हम, अगर किसी तरह की वो डोमेस्टिक वायलेंस या फिर किसी भी तरह की क्रिटिकल सिचुएशन में फंसी हुई हैं, अगर उनके पास ये एक फॉल बैक पोजीशन बेहतर है और उनके पास एक जमीन पर राइट है, उनको वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी है, तो फिर वो अपने आप को ज्यादा बेहतर असर्ट कर पाएंगी। और एक असर्शन की लाइफ डिग्निटी से भरी हुई होती है और उसमें सबमिशन नहीं होता है। तो मुझे लगता है कि अगर लड़कियां, हम मतलब इस सोच को थोड़ा बदल के देखें कि डाउरी के बजाय जमीन के ऊपर अधिकार को ज्यादा महत्वपूर्ण समझें और उसको चेज करें बजाय डाउरी को चेज करने के, तो शायद लड़कियों के लिए और सबके लिए बेहतर होगा। और मैं मेरी बात को यहीं पे खत्म करूंगी। मुझे लगता है कि बस लास्ट स्लाइड में केवल मृणाल पांडे की बात रखना चाह रही थी। मैंने मृणाल पांडे का भी 2020 में एक आर्टिकल शायद 15 अगस्त के आसपास इंडियन एक्सप्रेस में मैं पढ़ रही थी, एंड आई जस्ट लव दीज लाइन्स, एंड शी सेड दैट revolutions are not made by laws, but being free requires empowering yourself and helping others step out for a change. तो हम बैठे बैठे बदलाव की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, लेकिन हम कैसे उसके लिए असर्ट कर सकते हैं और बदलाव का रास्ता चुन सकते हैं, ये शायद जरूरी है। और इस बात के साथ मैं मेरी बात को रोकूंगी। मुझे पता है शायद हमारे पास वक्त बहुत कम है, लेकिन निश्चित रूप से कुछ लोगों के सवाल मैं लेना चाहूंगी। मेरे ख्याल से कुछ लोगों के सवाल हो तो वो चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। Thank you so much, ma'am. This was a really great learning session for all. आपने जो भी बताया, चाहे वो राजस्थान का आपका 2000 का इंसिडेंट था, जहाँ पे आपने हम लोगों को बताया कि राइट टू लाइफ कितना जरूरी है और कैसे उस गांव के लोगों ने लड़कियों को फॉरेस्ट में, जंगल में छोड़ दिया था, या आपने अमर्त्य सेन की बातें बताई कि लड़कियां मरेगी नहीं, ऐसे ही चलती रहेगी। और मैम ये बात सही है, वी वोंट डाई बट वी विल गो ऑन लाइक दिस, एंड दिस वेरी स्टेटमेंट गिव्स अ बूस्ट टू ऑल ऑफ अस। और आपने जो भी हिंदू सक्सेशन एक्ट के बारे में बताया, एंड हाउ लैंड ओनरशिप हेल्प्स गर्ल्स टू assert themselves, their rights and live a dignified life, this was a very learning experience and great for all of us. And now I'll share the questions with you. Yeah, sure. Thank you so much, Ballari. Thank you, ma'am. Ma'am, first question would be ki, how can we start an IEC material, like information and communication material, on this specific issue? मुझे लगता है कि आईईसी के तो बहुत सारे तरीके आप लोग ज़्यादा बेहतर जानते हो। आजकल सोशल मीडिया इतना है अवेयरनेस के लिए, छोटी छोटी वीडियोस होते हैं, छोटे छोटे वीडियोस हो सकते हैं, बहुत सारे स्लोगन्स खुद भी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग भी हैं वुमेन्स मूवमेंट में, पर आप लोग नए नए भी बना सकते हो। और मतलब इन सब चीज़ों का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल।
और खास करके कहीं कहीं पर मुझे तो ये लगता है कि इस तरह के राइट्स की बात जो है, क्योंकि ये हमारी जिंदगी से जुड़ी होती है, ये हमारे एजुकेशनल क्यूरिकुलम का कहीं ना कहीं जरूर हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि ये लड़कियों को स्ट्रेंथन करने में बहुत मदद करेगा, ऐसा मुझे लगता है। थैंक यू मैम। मैम नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैसे आपने माइंडसेट और पॉलिसी मेकर्स की बात की कि पेट्रियार्कल बिलीव्स है, बट हमारी जो सेंटर और स्टेट पे प्रेजेंटेशन है, जो हमारे पॉलिसी मेकर्स ही है, उनमें क्या लड़कियां इतनी है कि वो अपने राइट्स के बारे में बात भी कर पाए? क्या हमारी प्रेजेंटेशन इतनी है, जेंडर मेन स्ट्रीमिंग है? डू वी हैव सच लॉज इन प्लेस? हाँ देखो, इससे मैं आपको एक और मजेदार बात बताती हूँ। एक बार एक कॉन्फ्रेंस थी बहुत बड़ी, है ना, जैसे हम लोग दिल्ली में हर साल करते हैं, लैंडिसा भी उसमें एक पार्ट होता है, ऑर्गेनाइजर होता है, जिसमें कि लैंड सेक्टर में काम करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। एक बार उसमें पूरी कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद एक पॉलिटिशियंस का पैनल बैठा था, जो कि पूरे कॉन्फ्रेंस के डिस्कशंस और क्वेश्चंस को रिस्पॉन्ड करने के लिए बैठा था। तो अलग अलग पार्टीज के 3-4 लोग उसमें बैठे थे और एक जर्नलिस्ट थे। और उस पैनल के सामने जितने 3 दिन में कॉन्फ्रेंस में डिस्कशंस हुए थे, उन सब लोगों ने अपनी अपनी जो डिमांड्स थी थीमेटिक, वो प्रेजेंट करी। तो हमने वुमेन लैंड राइट्स से रिलेटेड भी कुछ चीजें वहां प्रेजेंट करी थी। उसके बाद जब मंत्री लोगों ने रिस्पॉन्ड किया, जब मिनिस्टर्स ने, तो उन्होंने सारे सवालों को रिस्पॉन्ड किया, पर वुमेन लैंड राइट्स के सवाल के ऊपर किसी ने भी रिस्पॉन्ड नहीं किया। एक महिला को, नीचे बैठी हुई मेरे एक कलीग थे, उनको उठ के कहना पड़ा कि आपने इसके बारे में तो कोई बात ही नहीं करी। तभी भी उन मिनिस्टर्स में से किसी ने रिस्पॉन्ड नहीं किया, केवल एक जर्नलिस्ट थे जो वहां पे, उन्होंने रिस्पॉन्ड किया। और उस जर्नलिस्ट ने कहा कि औरतों को अगर अधिकार लेना है जमीन का, वुमेन लैंड राइट्स की अगर बात करनी है, तो सबसे पहले आपको उठ के पार्लियामेंट में बराबर संख्या में बैठना पड़ेगा। तो ये बात तो सच है। इसी को पेट्रियार्की कहते हैं कि जो सारे सिस्टम्स, नॉर्म्स, वैल्यूज बनाने वाले हैं, वो भी पेट्रियार्क। जो लॉज को ड्राफ्ट करने वाले हैं, वो भी पेट्रियार्क। और जो उसको इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, वो भी पेट्रियार्क। मैं कानूनों में बदलाव को लेकर कई बार रेवेन्यू बोर्ड में लोगों से मिली हूँ या मिनिस्टर्स से मिली हूँ, पर ज्यादातर लोग जो है ऐसे ही होते हैं कि आपकी बात को एकदम रिजेक्ट कर देंगे। वुमेन लैंड राइट्स के नाम से लोगों को बहुत ही ज्यादा खराब लगता है कि ये बहुत ही अनहोनी डिमांड है, बहुत ही बड़ी चीज है। लेकिन ये सच है कि इसी सिस्टम में और इन्हीं लोगों के बीच में हमेशा कुछ सपोर्टिव लोग भी मिलते हैं, और वो औरतें भी होती हैं और वो आदमी भी हो सकते हैं। और वो लोगों के साथ हम लोग उन लोगों के ऊपर ज्यादा ध्यान दें अगर, तो हम अपने एनकरेजमेंट को बनाए रख सकते हैं। मैं एटलीस्ट यही चीज अपनाती हूँ। थैंक यू मैम, दिस वाज रियली नाइस। आपने जो भी शेयर किया रिगार्डिंग योर पर्सनल एक्सपीरियंस विद मिनिस्टर्स, एंड आई थिंक लोग इसको टैबू की तरह ज्यादा ट्रीट करते हैं रादर दैन कंसीडरिंग इट एज एन इशू टू बी रादर लुक फॉरवर्ड टू एंड बी टेकन अप फ्रंट। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन एक मोहन एनजीओ की तरफ से है। क्वेश्चन इज सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इनफ टू गेट इक्वल राइट्स और एल्स एन एक्ट शुड बी पास्ड इन पार्लियामेंट बाय अमेंडिंग 2005 एक्ट? अगेन इसका आंसर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन हाँ, इसमें इक्वल राइट है। इसके लिए अब किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी में या फैमिली की जॉइंट प्रॉपर्टी में हिंदू लड़कियों को राइट के लिए और किसी एक्ट की मेरे हिसाब से अब जरूरत नहीं है। ये बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में एकदम लाउड एंड क्लियर स्पष्ट कर दिया कि लड़कियों को बराबर राइट है। अब जो सबसे मेजर हर्डल इस एक्ट में बची है, वो ये बची है कि विल फादर इसको कर सकते हैं। तो जब विल करके वो लड़कियों को डिसइनहेरिट कर सकते हैं, पर देखते हैं कि इसको कब तक हम टैकल कर सकते। लेकिन अगर कोई इंटरस्टेट किसी का बिना विल लिखे किसी का डेथ होता है, तो लड़कियों को एकदम बराबर राइट है। और अगर जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी है, तो लड़कियां उसमें बिंदास अपनी जमीन, अपना हक, अपना हिस्सा मांग सकती है। थैंक यू मैम, थैंक यू अगेन।
Ma'am, next question is, what do you think कि आगे क्या way forward है for women's access to land and property in India, or what could be some of the ways that can help us strengthen women land rights? देखो, तरीके तो ये है कि सबसे पहले तो कानून मजबूत होना चाहिए, बिल्कुल। लेकिन मुझे लगता है कानून मजबूत है हमारे पास, तो सबसे ज्यादा बड़ी जरूरत है सामाजिक सोच में बदलाव की। इसका सोशली ये लेजिटिमाइज होना चाहिए कि लड़की का राइट है। हम अभी तक कैसे देखते हैं, हम ऐसे सोचते हैं कि लड़की को अगर जमीन का हिस्सा देना है, हम सोचते हैं लड़के का हिस्सा कम हो जाएगा, और बेटे के भाई सोचता है कि मेरे हिस्से में से बहन को हिस्सा मिलेगा। ये सोच मेरे को लगता है बदलने की जरूरत है, क्योंकि जो लड़कियों को हिस्सा, भाई का हिस्सा बहनों को नहीं मिलता, बल्कि सच ये है कि बहनों का हिस्सा आज तक भाई को मिलता रहा, बहनों को कभी मिला ही नहीं। ये सच है। तो मुझे लगता है ये सोशल लेजिटिमाइजेशन की जरूरत बहुत ज्यादा है। और तीसरी सबसे ज्यादा बड़ी जरूरत है कि पूरा जो सिस्टम है उसको थोड़ा सा, ताकि जो लॉज है वो इम्प्लीमेंट भी उसी स्पिरिट में हो जिस स्पिरिट में लॉ के अंदर कुछ एडवांस प्रोविजंस लाए गए हैं। मैम, आप बहुत सही बात बोली आपने रिगार्डिंग सोशल जो हमारे इश्यूज है इंडिया में, कंसिडरिंग सोशल नॉर्म्स जो है हमारे नॉर्म्स ही ऐसे अराउंड बेस्ड है कि मेन आर सुपीरियर टू वुमेन और दे हैव मोर राइट्स ऑन अस। मैम, लास्ट क्वेश्चन इज, are girls and women oriented even to think about their property rights? Because जो भी हम लोगों ने इंटरव्यूज किए थे on behalf of City Speaks Youth Perspective on Land Governance, हमारा क्वेश्चन यही था कि how do women see land as a resource, as an asset? Women in general, they don't have major or particular interest in property. घर में भी किसी को decisions लेने होते हैं regarding property, money, it is mostly the men of the house. So how they can be incentivized or how they can be made aware of this specific topic? देखो क्या है कि एक तो वही इंटरनलाइजेशन के साथ लड़कियां भी बड़ी होती हैं, बचपन से यही सुनते हुए बड़ी होती हैं कि तुम्हें तो दूसरे घर जाना है, ये घर तो तुम्हारा है ही नहीं। तो वो जो बचपन से जो इंटरनलाइजेशन होता है, दैट टेल्स देम कि इस प्रॉपर्टी में मेरा तो कोई राइट है ही नहीं। एक बात। दूसरी बात कि अब जब धीरे धीरे लड़कियों को कुछ समझ आ रही है, कानून बदल रहे हैं, हमारी अवेयरनेस बढ़ रही है, लड़कियां भी ज्यादा पढ़ लिख रही हैं, तभी भी जब वो चाहती हैं तो असर्ट करना बहुत मुश्किल होता है। असर्ट करना, मांगना इसलिए मुश्किल होता है क्योंकि ये मांगने से कि लड़ाई किसके खिलाफ है, किसके अगेंस्ट है। इट्स अगेंस्ट देयर ब्रदर्स, अगेंस्ट देयर फादर, जो कि उसके बहुत करीबी लोग हैं, जिनके साथ वो बड़ी हुई है, जिनको वो प्यार करती है। और वो जो ये वैल्यू सिस्टम है जो ये बताता है कि अगर लड़की जो है अपने भाई के नाम प्रॉपर्टी लिख दे, इस तरह के, तो उसी लड़की को हम ज्यादा वैल्यू करते हैं, असर्ट करने वाली लड़की को हम उतना वैल्यू नहीं करते। तो इन सब के बीच में जो है ना, लड़कियों को असर्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। पर मैं जब लड़कियों और औरतों से बात करती हूँ तो मुझे कभी ऐसी लड़कियां और औरतें नहीं मिली जो जमीन ओन नहीं करना चाहती हैं। वो चाहती हैं कि जमीन उनके नाम हो, वो चाहती हैं कि उनको हक मिले, पर ये लड़ाई मुश्किल है और इसलिए वो थोड़ा झिझकती हैं। मेरा ये समझ है। बिल्कुल मैम, थैंक यू सो मच finally for giving us so much time. I'll finally like to thank you for your expert insights and your on-ground experiences into the topic. आपने हमें जो भी कहानियां सुनाई, छोटी सी कहानी, प्यारी सी कहानी, आप उसके थ्रू जो भी मैसेज हमें डिलीवर करना चाहती थी, it was very well delivered and understood by all of us. And lastly, I'd like to thank the audience also for their support and participation in the discussion and for making this a great learning experience by sharing their questions with us. I hope this vigor and the enthusiasm that we saw today continues in the future events as well. And I hope girls get more incentivized and they take more interest in property related issues and rights. And finally, please visit City Speaks website, Instagram and Facebook so that you can be linked to the future events. And thank you so much, ma'am, for your support and help throughout and your inspiration on the topic.
Thank you. Thank you so much for this opportunity to have a conversation with all. I enjoy talking about this every time I do so. Thank you Thank so much, ma'am. Thank you, everyone. you. Bye. Thank you.